सेवा भारती पूर्वांचल उत्तर पूर्वांचल के 7 राज्यों के दूर दराज गांवों में विभिन्न आयामों के द्वारा शोषित, पीड़ित, वंचित समाज बंधुओं के लिए सेवा में गत 15 वर्षों से कार्यरत है। इसी श्रृंखला में आरोग्य मित्र योजना गत 14 वर्षों से चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से समाज को स्वस्थ रखने का प्रयास चलाया जा रहा है। वर्तमान में 5000 से अधिक आरोग्य मित्र पूरे 7 राज्यों में काम कर रहे हैं। इन सभी आरोग्य मित्रों को गतिशील करने हेतु आरोग्य मित्र का सम्मेलन आरोग्य चेतना शिविर नाम से संपन्न होने जा रहा है। इस शिविर में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा के 37 जिलों से 1843 प्रतिनिधि, इनमें 966 महिला तथा 877 पुरुष प्रतिनिधि व व्यवस्था हेतु 200 प्रबंधक उपस्थित हैं। आइए हम आरोग्य चेतना शिविर का दर्शन करें। जय गुरु शंकर हर रघुनाकर, जाकरि नहीं अनुपम तुम्हारी शरणे रेणुकत कोटि बार करम प्रणाम करम प्रणाम। आज এই মহাক্ষণত উপবিষ্ট হৈ মই নিজকে ধন্য মানিছো যে আপোনাসমৰ এই মহান প্ৰচেষ্টাই যে সমস্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যে সেৱাৰ আগবঢ়াই আহিছে, বিশেষকৈ আৰোগ্য মিত্ৰসকলৰ এই যি শিবিৰ হ'ব আৰু তেখেতসকলে যে জীৱন সেৱাৰ বাবে আগবঢ়াইছে, এই সুযোগতে সমগ্ৰ আৰোগ্য মিত্ৰসকললৈ মই সশ্ৰদ্ধ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো। আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতসকলে নিজৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ উপৰিও দেশ সেৱাৰ চিন্তা চৰ্চাৰ লগত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ স্বাস্থ্য সেৱাৰ যোগেদি তেখেতসকলে সুনাগৰিকসকলক যাতে সুস্থিৰ কৰি আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰত মাতৃৰ পৰি সেৱা আগবঢ়াবলৈ যেন তেওঁলোকো সচেষ্ট হওক, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলকো যাতে এই সেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহিত কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰখাটো আমি कामना करूं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप सरकार जी का परिचय आपसे कराना चाहेंगे। पूजनीय जनार्दन देव गोस्वामी जी उत्तर कमलावरी सत्र माजुली के पूजनीय सत्राधिकार हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने आज के इस कार्यक्रम के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। डॉक्टर उमेश शर्मा जी, माननीय सरकार्यवा श्री सुरेश जी जोशी, माननीय सूर्य प्रकाश जी टोंग, डॉक्टर धनेश्वर कोलिका जी, स्वागत समिति की अध्यक्षा श्रीमती मंदिरा चंद्र, मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहनों से कृपया उल्लास जी का सम्मान करें। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा जी,
डॉक्टर उमेश चक्रवर्ती जी, श्री मनोरंजन शील जी, বৃহৎ উদ্দেশ্য লৈ এই দুদিনীয়া বিশাল আৰোগ্য চেতনা শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ উদ্দেশ্যে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ পৰা প্ৰায় 2000 আৰোগ্য মিত্ৰ আহি উপস্থিত হৈছেহি। আপোনালোক প্ৰত্যেকজনলৈকে মই এই শিবিৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক যিদৰে আমি আদৰ সন্মুখীন জনাব লাগিছিল, আমি হয়তো তেনেদৰে সেৱা সৎকাৰ কৰিব পৰা নাই। আমাৰ অনুচ্চাকৃত ভুল ত্ৰুটিসমূহ আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। जिन लोग हम लोग का भारत का विभिन्न कोना से यहाँ आके उपस्थित हुआ है, उन लोग सभी को मेरे तरफ से, हम लोग का कमेटी का तरफ से भी हम आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और तथा स्वागत करती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आमी आमार लेवलत এনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে আছো। আৰু আজি আহি পাওঁতে ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সুধিছে যে আপুনি কেনে দেখিছে। তেতিয়া মই কৈছোঁ যে আমি অভাৰ হ'লো, আপ্লুত হৈছোঁ সেইকাৰণে যে ইয়াত কি বহুত মিটিং হয় আৰু মিটিঙত মানুহ থাকিবৰ কাৰণে বাছেৰে আনিব লগা হয়। বহুত মানুহক কিছুমান মানে ধৰি আনিব লগা হয়, কিবা কিবা লগা অডিয়েঞ্চ লাগে। কিন্তু এইটো হৈছে এটা স্পণ্টেনিয়াছ ৰেছপন্স। ইট ৰিফ্লেক্টছ দি ডেডিকেশ্যন, ইট ৰিফ্লেক্টছ that how sincere they are. আৰোগ্য মিত্ৰসকলে যিটো ধ্যান ধাৰণাৰ দৰ্শনলৈ আগবাঢ়ি গৈছে, এই ধ্যান ধাৰণা দৰ্শনৰ কথাবিলাক বহুত আমাৰ ষ্টাডি আগতে হৈছিল। আৰু 1977 চনত এটা স্কিম লৈছিল CHW, কমিউনিটি হেল্থ ৱাৰ্কাৰ স্কিম, তেতিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 3 মাহত ট্ৰেইনিং দি দিলে, গাঁৱে গাঁৱে চিলেক্ট কৰিলে প্ৰতি 1000 পপুলেশ্যনৰ মাজত এজনকৈ। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল PSC বিলাকত, CSC বিলাকত। ভলণ্টিয়াৰলি যদি তোমালোকে পাব্লিকৰ সেৱা কৰা, তাতো কমপ্লিকেশ্যন আহি গ'ল। লাষ্টৰ নাম দিলে ভিলেজ হেল্থ গাইড, VHG। আৰু সেইখিনি সময়তে মই বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত পষ্ট গ্ৰেড কৰিবলৈ গৈ পেলাই এই লাইনতে মই মোৰ MD থেচিছ আৰম্ভ কৰিলোঁ যে কিছুমান মানুহক কমন যদি নলেজ দিয়া যায়, তেওঁলোকে কিছুমান আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান তেওঁলোকে নিজেই তাতে চম্ভালিব পাৰে। সমাজত এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ আছে যাৰ কাৰণে নেকি বহুত কোৱালিফাইড ডাক্তৰৰ দৰকাৰ নাই আৰু ডাক্তৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি। আমি দিল্লীত বহুত মিটিং কৰোঁ যে ডক্তৰ পপুলেশ্যন ৰেচিঅ'টো কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ, কমাব পাৰোঁ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে কেনেকৈ 1000 পপুলেশ্যনত একজন ডক্তৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু তাৰ কাৰণে মেডিকেল কলেজ বঢ়াই আছোঁ, চিট বঢ়াই আছোঁ, তথাপিতো সহজ নহয়। কিন্তু সেইবুলিতো আমি ৰাইজখিনিক এৰি দিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে এনেকুৱা স্কিমবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টেও মনোনিৱেশ কৰি আছে যে মানুহে যদি কিছুমান কমন কথা জানে, তেতিয়া বেমাৰটো একদম শেষ পৰ্যায়ত নাহে। কিছুমান অৱস্থাত ডক্তৰ তাত আহে, ডক্তৰৰ উপায়হীন আৰু আল্টিমেটলি মৃত্যুৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই। আৰু সেৱা ভাৰতীৰ মানে ইয়াত যি ধৰণৰ এটা উদ্যম লৈছে, এনেকুৱা ভাবা ধৰণে যদি বেমাৰ মানুহবিলাকে যদি সচেতন হয়, চেতনা জাগে তেওঁলোকৰ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নালাগে, ডুজ আৰু ডোনটছ, তেতিয়া মানে বহুত মানুহৰ আমি জীৱন বচাব পাৰোঁ। মাটি, পানী, বায়ু আৰু আমাৰ ৰোগ কিয় হয় তাৰ কাৰণকেইটা মই সাধাৰণতে আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা ভবা নাই। সাধাৰণ মানুহেনো বাৰু বেমাৰৰ বিষয়ে কি ভাবিব পাৰে, মই সেইটো চিন্তা কৰিলোঁ। দুটা বস্তু আছে, আমি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ লিখিছে, স্বাস্থ্য ব্যক্তি, স্বাস্থ্য পৰিবার, স্বাস্থ্য সমাজ, স্বাস্থ্য ৰাষ্ট্ৰ। আমাৰ সমাজখনেই মানসিকভাৱে খুব বিকৃত হৈ পৰিছে। মানসিক বিকৃতি কেনেকুৱাকৈ ঘটিছে যে আধুনিক সভ্যতাৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন খোৱা লোৱা থকা আদব কাইদা সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, মানে বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, যিটোক নেকি কোৱা হৈছে লাইফ ষ্টাইল চেঞ্জ। পৰিবাৰত ব্যক্তিৰ লগত, পৰিবাৰৰ লগত, সমাজৰ লগত এটা বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই সংঘাতৰ সৃষ্টিৰ ফলত আমাৰ সমাজখন কেনেকৈ আগুৱাই সফল পথত সঠিকভাৱে আগুৱাই যাব লাগিব, তাৰ পৰিকল্পনাবিলাক আমি আকৌ পুনৰ মূল্যায়ন কৰিব লগা হৈছে সমাজে। जी
शंकरदेव हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर उमेश शर्मा जी ने हमको बहुत सुंदर ढंग से इस आरोग्य मित्र की अवधारणा के बारे में बताया है। परंतु ये जो आरोग्य मित्र का जो कंसेप्ट है, ये क्या हमने शुरू किया है क्या इसके पहले ये नहीं हुआ है क्या? तो हमको ध्यान में आएगा कि ये कोई नई बात नहीं है। अपने इस भारत की प्राचीन जो सन्यासी परंपरा है उसके वो ऋषि थे और गांव-गांव में जाते थे और केवल विद्वान नहीं थे, एक बहुत अच्छे वैद्य थे। आज की भाषा में जिनको डॉक्टर कहते हैं, और सभी गांव में जाते थे, वहां के युवक युवकों को सिखा करके अगले गांव में जाते थे। तो अपने इस आरोग्य मित्र की जो संकल्पना है वो आज की नहीं है, ये 5000 साल पहले से चल रही है। 12 वर्ष पहले जब इस योजना का हमने प्रारंभ किया था तो इसके पीछे बहुत परिश्रम किया गया है। इसके पीछे कई लोगों की बड़ी भारी साधना है, बड़ा भारी त्याग है। तो ये समाज के प्रति जो आंतरिकता का भाव है कि ये मेरा है, अपना है, वो रास्तों न से आरोग्य रक्षक के पीछे, आरोग्य मित्र के प्रति हमारी जो धारणा है वो ये है कि अपनेपन का भाव ये आप सब में है। इसको मैं प्रत्यक्ष अनुभव करना, इसलिए आप अपने घर से अपना खर्चा करके शुल्क दे करके यहां पर आए। आज के दिन में ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों का ये समर्पण है, ये जो सेवा का भाव है, उसको मैं प्रणाम करता हूं और इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। तकरीबन 15 साल पहला जो बीज बपन हुआ था, आज उसका फल हम लोग देख रहा हूं। हमारे आरोग्य मित्र भाइयों बहनों, एक ईश्वरीय काम है ये मानकर चलना। तो उन्होंने कहा मैं पर्पसफुली एंड डेलिबरेटली एक सिलेबस लिखा हूं। वो बोला कि ये तो एमबीबीएस के जगह है उनका भाषण में। तो ताकि नाम जान चले और आरोग्य मित्र कि तुम किसने तुमको वो बोले कि ये हमारा सिलेबस है, प्लीज गो थ्रू इट, इफ एनीथिंग रॉन्ग हमको बोलो, उसका राइटर को बोलो। तो आप लोग कार्यालय में मिलेगा, वो पढ़िए, प्लीज गो थ्रू इट, यू विल नो मच मोर देन दिस। अब इतना कहते हुए मुझे बहुत आनंद मिला है आप लोगों को देखते हुए, और इतना कहकर मैं मेरा वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। পোনপ্ৰথমে প্ৰভু ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীক আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ সমাগৰ সভাই তেখেতলৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰফেচৰ উমেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা, ভাইচ চেঞ্চেলৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সেছ, আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ ধনেশ্বৰ কলিতা, মাননীয় শ্ৰী সুৰেশ যোশী, সূৰ্য প্ৰকাশ টোক, সন্মানীয় শ্ৰী উল্লাহ কুলকৰ্ণী, শ্ৰীমতী মন্দিৰা চন্দ, মনোৰঞ্জন শীল, প্ৰান্ত সংঘ চালক,
ডক্টৰ উমেশ চক্ৰৱৰ্তী তেখেতসকলে যি সভাৰ হোষ্ট কৰাইছে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমাৰ অন্তৰৰ পৰা শলাগৰ শলাই আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্বামী বিবেকানন্দৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমি স্বামীজীৰ ওপৰত এক প্ৰবোধন ৰাখিছোঁ আৰু নাৰী শক্তি জাগৰণ এই বিষয় লৈ এক প্ৰবোধন কাৰ্যক্ৰম ৰাখিছোঁ। এয়া আমাৰ মাজত ডক্টৰ অশোক বাছনে। डॉक्टर पुष्पा सिंह। फिर हमारे लिए इस स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कैसे कैसे प्रासंगिक हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक कार्य से ऐसा कुछ करके दिखलाया कि उनकी मृत्यु को आज 111 वर्ष पूरे हो गए, तो भी आज देश के अंदर और देश के बाहर भी हर युवा व्यक्ति उनको अपना रोल मॉडल मानता है। हम भी हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसा ही स्वरूप अपने द्वारा किए हुए कार्यों से स्वयं देख सकते हैं और इसके लिए एक साधनारत जीवन व्यवहार आचरण यह एक आवश्यक पहलू है। इस संपूर्ण पूर्वांचल के क्षेत्र में केवल सभी राज्यों जिलों में ही नहीं तो प्रत्येक स्वास्थ्य के विषय को आधार बनाकर सबको जोड़ते हुए सबका मार्गदर्शन ही नहीं करेगा, स्वयं उसका उदाहरण बनेगा। हम इस दिशा में सोचे विचारें। मुझे लगता है इतना ही मुझे इस समय निवेदन करना चाहिए। भारत माता की जय। मनु ने ही ये कहा है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता का निवास होता है। देवता कैसे देवता का निवास होता है, कैसे पूजा, सुख शांति बनी रहती है। यानी कि वो वही मनु बोलते हैं, अब उसी मनु स्मृति में है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रश्न को लेकर अपने मन में संदेह है, अगर उन्हें उसी वक्त पर समय पर गुरु उपलब्ध ना हो तो वह किसके पास जाए? माँ के पास जाए, क्योंकि माँ अपने पुत्र को कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखा सकती। इसीलिए यदि गुरु उपलब्ध ना हो तो तुम मातृशक्ति अपनी माँ के पास जाओ और वह जो बोले तुम वही करो। अब हम देखते हैं माँ, हम आगे नहीं लगाए हैं। जब मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, भारत माता वहां लगाए हैं ना। अपने देश को भी हम भारत माता कहते हैं। भारत पिता कहते हैं? नहीं कहते हैं। भारत माता कहते हैं। धरती पिता कहते हैं? नहीं कहते, धरती माता कहते हैं। अमेरिका माता नहीं है, पाकिस्तान माता नहीं है। अगर किसी को माता की उपमा दी गई है तो यहाँ गंगा मैया कहते हैं। यानी कि माता इसीलिए उसमें शील है, आचरण है, त्याग है, ममता है, प्रेम है, जो अपने प्रेम के बल पर एक शेर को भी अपने प्रेम में वशीभूत करके उस पे विराजमान हो सकती है। यानी कि माता का वह हृदय है जो परिवर्तित कर सकती है। अगर लड़की जन्म होती है, हम लड़की है, अगर लड़की को जन्म दिए हैं तो हमारा यह कर्तव्य है उसको आचरण सिखाना। वह आचरण कैसा होना चाहिए? शील, शिष्ट आचरण। यह विनती करूंगी अपने बच्चों में यह संस्कार दीजिए ताकि वह शिष्ट बने, आचरण वाली बने और उसका समाज में शोषण ना हो, वह सवस्त्र रहे, निर्वस्त्र ना हो, उसका अपहरण ना हो, वह केवरे ना करे, अपने लोक गीतों में रचे और बसे। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। खुद को देख रे हमको मन की शक्ति देना। बहुत जाते जाते से अपने अरुण दा, भास्कर जी,
ऐसे सब लोगों ने आपको कई बार बताया होगा कि शरीर का रचना कैसा है। और इसलिए जब आप आरोग्य रक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करते हो उस समय शरीर के बारे में जानते हो। कभी कभी हम नाखून काटते हैं, वो नेल कटर से नाखून काटते हैं। कभी कभी थोड़ा ज्यादा नाखून कट जाता है, तो जैसे ही ज्यादा नाखून कटेगा तो तुरंत वहां पर दर्द शुरू होता है और अनुभव करते हैं कि हाँ थोड़ा नाखून ज्यादा कट गया, थोड़ा अंदर भी चला गया, कष्ट हो रहा है। वो कष्ट कब तक होता है? एक 3-4 दिन तक उसका अनुभव होता है कि नाखून। अब कोई कहेगा कि पूरे शरीर में नाखून कितना बड़ा? बहुत छोटा। कांटा कितना? और भी छोटा। ज्यादा कट गया यानी कितना? तो अगर कोई कहेगा कि ये तो प्रतिशत के हिसाब में लगाएंगे तो 1% भी नहीं, आधा प्रतिशत भी नहीं, आधे से भी कम भी नहीं। तो कोई कहेगा अरे आपका 99.9% शरीर अच्छा है, 0.1% चला गया, छोटा सा चला गया, तो क्या नुकसान है? 99% तो अच्छा है। पर हमको लगता है कि नहीं, वो थोड़ा सा भी कर जाता है तो सारे शरीर को एक वेदना की अनुभूति होती है, कष्ट होता है। ये सब हम लोग अपने शरीर के बारे में अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जब हम अपना, ये भारत एक अपना देश है, तो इस देश में भी कुछ छोटी मोटी तकलीफ होती है तो वेदना सारे भारत को अनुभव में आएगी, तो कहेंगे ये शरीर जिंदा है। तो देश भर में फैले हुए इस प्रकार का आरोग्य रक्षक का काम करने वाले, धर्म के लिए काम करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले ऐसे जो लाखों कार्यकर्ता है, वो इस देश के शरीर को ठीक करने के लिए आरोग्य रक्षक है। तो हम सब कौन है? केवल शरीर के आरोग्य मित्र नहीं, तो इस समाज के भी हमको आरोग्य मित्र बनना है। व्यक्ति को ठीक